آپ کرسمس کی تیاریاں کریں اور کرسمس میں اپنی محبت کا اظہار خدا سے کیسے کرتے ہیں. تو آپ اپنے پاسٹر صاحب کے لیے پھر سے زوردار تالیاں بجائیں. یسوع مسیح کی قوت کے نام میں سب کو سلام. سب کو سلام. خدا آپ کو برکت دے. شکر گزار ہے خدا کا جس نے بھی موقع عطا کیا کہ آج پھر ہم خدا کے زندہ کلام کو سن سکیں. آج جیسا کہ میں نے بھی بار بار کہا کہ آج ہمارا جو موضوع ہوگا کلام کا وہ ہوگا کہ ہم کس طرح اس کرسمس پر اپنے خدا سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. گیٹ ریڈی فار کرسمس. آؤ کرسمس کے لیے ہم تیاری کریں کیونکہ ابھی جو ہے 5 سنڈے کے بعد چھٹا جو ہوگا وہ 25 دسمبر کا ہوگا اور اس دن ہم خدا کے حضور اس دن کو منائیں گے. اور آج جو ہم بات چیت کریں گے ہاؤ ڈو وی شو دا لو آف کرسمس ٹو گاڈ. ہم خدا سے کرسمس کی محبت کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام سنانے سے پہلے مجھے بات یاد آ گئی. خدا کا جو کہتا ہے مجھے بی بی پوچھتی ہے کہ چرچ راشن ونڈنا ہے. کہتا نہیں اس دفعہ نجات ونڈنا. کہ پاس مذاق نہ اپنا دسو راشن ونڈنا. کہتا بی بی تو دسن دے دفعہ نجات ونڈنی. کہ لو جی والی کوئی گل نہیں توڑ. کہتا میں سوچتا رہ گیا کہ راشن زیادہ ضروری ہے کہ نجات زیادہ ضروری ہے. کی ضروری سی کی سی. لیکن ان لوگوں کے لیے جو زمینی تلاش کے اندر ہے خواہشوں کے لیے وہ نجات کو ایسے پھینک کے نا جیسے کچھ عام سی چیز ہوتی ہے نا کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اوکے. اس کا مطلب ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے کرسمس پر کیا زیادہ ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری ہے. کیا ہم یسوع کو دینا چاہتے ہیں اور کیا ہم دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے. یاد رکھیے خدا کلام کے اندر ہم یہ بھی سیکھیں گے. آج میں چاہتا ہوں جتنے میرے یہاں بہن بھائی بیٹھے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں آج سے آپ تیاری کریں وہ کرسمس کی نہیں جو ہر سال آپ مناتے ہیں. ہر سال چرنی ہوتی ہے مجوسی ہوتے ہیں ماحول ہوتا ہے وہاں پر جو ہے ہر طرح سے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جی فرشتے آگے ہم ایسے دیکھتے ہیں 2 تصویریں بناتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. چرنی بھی ختم مجوسی بھی ختم فرشتے بھی ختم اور کرسمس بھی ختم. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. میرے یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں ساری عمر کرسمس ہی مناتے رہے. کیوں شکر صاحب اینجی مناتے رہے چرنی بنا لی وہ اگلے چرنی نو ویکھ لیا تو کو سجدے کر لے نال بہ گئے تصویر بنا لی چلو جی چرنی پٹ کے باہر سٹی کرسمس ختم. لیکن یسوع مسیح کا کرسمس کیا ہے؟ یسوع مسیح کیسا چاہتا ہے ہم کرسمس منائیں؟ یسوع مسیح کیا ہماری زندگی سے چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اب اس کرسمس سے تھوڑا سا باہر نکلیں. یہی ساری عمر ہم بھی یہی کرتے ہم مر جاتے ہیں اگلی نسل کو دے جاتے ہیں. وہ بھی اسی طرح پہلے بنا لیتا ہے پھر ٹھا لیتا ہے پھر بنا لیتا ہے پھر ٹھا دیتا ہے. ایک دن خدا کو ہی ٹھا دیتا ہے چلا جا ان پاس نہیں پڑی. اس سے باہر نکلے اس کرسمس سے باہر نکلے. بڑا ضروری ہے اس سے باہر نکلنا. میرے سے یاد رکھیے میں آپ کی زندگی میں پڑھنا چاہتا ہوں. آئیے میرے ساتھ نکالیے یسایہ بن آموس کا صحیفہ. آئیے میرے ساتھ نکالیے اس کو سنیے گا. خدا کا کلام آپ کی زندگی میں رکھنے سے پہلے یسایہ بن آموس اس کا پہلا باب اور اس کی میرے ساتھ نکالیے گا. باہر بھی آئے. یسایہ بن آموس بڑا خوبصورت صحیفہ ہے. اس سے اگر 1 سے 39 باب تک جائیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہودا کے ساتھ جو مسیح کا ملک ہے جو اسور ہے اس سے اس کو بڑا خطرہ ہے. وہ اس کو مارنا چاہتا ہے برباد کرنا چاہتا ہے. لیکن یہودا ایک اور بڑے دشمن کی بات کرتا ہے اور یسایہ اس کے یہودا کے ایک بہت بڑے دشمن کی بات کرتا ہے جسے زیادہ اس سے خطرہ ہے جس کو آپ کو مجھے بھی بڑا اس سے خطرہ ہے. وہ کہتا ہے وہ اس کا اپنا گناہ ہے.
باہر کا دشمن تو ہے لیکن ایک اندر سے بھی گناہ ہے جو اسے زیادہ برباد کر رہا ہے، جس کا خدا پر، نجات پر زیادہ اس کا توکل نہیں ہے، بلکہ راشن پر اور ملنے والی چرچ کے اندر سے گفٹ پر، چرچ سے ملنے والے کیک پر اس کا زیادہ دھیان ہے۔ کہتا ہے یہودا کا خدا سے زیادہ کسی اور پر توکل ہے، وہ خدا پر کم توکل کرتے ہیں۔ یہ دوسرا ان کا گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ جو وہ کہتا ہے وہ خدا کی رج کے نافرمانی کرتے۔ سنیے میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، سنیے، دوسرا اور تیسرا گناہ خدا کی رج کے نافرمانی کرتے۔ اس لیے یسایہ کے اندر خدا اس کی معرفت یہودا سے کچھ کہتا ہے۔ میرے ساتھ یہ دیکھیے، خدا کے کلام میں دیکھیے، یسایہ پہلا باب اس کی 12ویں ہے۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو، سنیے آپ بھی خدا کے یسوع مسیح کے طالب ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے زندہ خدا کا دیدار کر سکیں، اس کی باتوں کو سن سکیں، اس کی پرستش کر سکیں۔ کلام کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ کو روندو؟ تم سے کون چاہتا؟ دیدار کرنے تو میرے آئے ہو، لیکن کون؟ میں نہیں چاہتا۔ خدا کہتا کہ تم میرے بارگاہ میں آ کر میرے بارگاہ کو روندو۔ اور جب آپ کے رویے روندنے والے ہوتے ہیں، نافرمانی والے، تو یہی وہی شکایت ہے جو خدا آپ سے کرتا ہے۔ ہمیں شادی بہت ضروری ہے، ہمیں کاروبار بڑا ضروری ہے، ہمیں ہر دوسرے کام بڑے ضروری ہیں، لیکن خدا کا دیدار تو کرنے آتے ہیں لیکن نافرمانی کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمارے رویے وہ نہیں۔ خدا کہتا کون چاہتا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ تم میری بارگاہ کو روندو۔ پھر خدا کیا آگے فرماتا ہے؟ ایندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے۔ اور خدا نے لکھا ہے نیک چاند اور سبت اور عید کی جماعت، یعنی آپ کی عیدیں جو آپ مناتے ہو، اکٹھے ہو کر میرے حضور آ جاتے ہو عید منانے کے لیے، کہتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے، دیکھیے عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں ہے۔ ایہو جی عید مینوں نہیں پسند ہے جس کے اندر بدکاری ہو، جس کے اندر نافرمانی ہو، جس کے اندر میرا آنر نہ ہو، جس کے اندر میری عزت نہ ہو۔ خدا کہتا ہے ایسی عید مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور آگے خدا کیا فرماتا ہے؟ سنیے، میرے دل کو تمہارے نیک چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہے، یعنی مجھ پر بوجھ ہے۔ جب تم ایسا کام کرتے ہو مجھ پر بار ڈالتے ہو، بوجھ ڈالتے ہو، اور مجھے غصہ، یہ بات میرے پر ایسا بوجھ ڈالتے ہو، اور کیا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آئیے میں آپ کی زندگی میں لکھنا چاہتا ہوں، خدا ایسی عیدوں سے، ایسے نیک چاندوں سے، ایسے ہدیوں سے جس سے زندہ خدا کے قانون ٹوٹتے ہیں، جس سے زندہ خدا کے حکم ٹوٹتے ہیں، جس سے کلام کی نفی ہوتی ہے، خدا کے منہ کے کلام کی، جسے وہ اپنی نام سے بھی زیادہ عزت دیتا ہے، اس کو روندتے ہیں۔ خدا نہ ایسی عیدی جماعت، یعنی جب اکٹھے ہو اور کرسمس منانے آ جاتے ہو اور آ کر پھر خدا کے گھر کو روندتے ہو، پھر خدا کے کلام کو روندتے ہو، خدا کہتا ہے تم یہ ایسا بوجھ مجھ پر ڈالتے ہو جنہیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سنیے، میں چاہتا ہوں اس دفعہ کچھ روحانی کام کیجیے، خدا کے کلام کے مطابق کلام کیجیے۔ کرسمس سے خدا آپ کی زندگی سے چاہتا کیا ہے؟ آپ اس کو سنیے۔ آپ وہ کام نہ کیجیے جو دنیا کرتی ہے، آپ وہ نہ سنیے جو دنیا کہتی ہے، آپ وہ نہ سوچیے جو دنیا سوچتی ہے۔ دنیا اور دنیا کے کام مٹ جائیں گے، جو جسمانی ہے وہ خدا کو ہرگز نہیں پا سکتا ہے۔ جب تک جسمانی رہیں گے خدا کو ہرگز آپ پا نہیں سکتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اسی باب کے اندر، پہلے باب کے اندر اس کی تیسری آیت دیکھیے، کیا خوبصورت اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کے لیے یہاں دیکھیے، سنیے۔
जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते। यशायाह एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है, वो ये आपकी जिंदगी में रखना चाहता है, वो ये बात जो है वो खबरदार करता है यहूदा को, बनी इस्राइल यहूदा के कबीले को वो खबरदार करता है। वो कहता है अगर खुदा की बात को नहीं सुनोगे, इन अब आप गौर से पढ़े तो एक बात और कहता है, मेरे भाई भी सुनिए आप, कहता है अगर खुदा की बात को नहीं सुनोगे, नहीं याद करोगे, नहीं मानोगे, तो इसका रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत बर्बाद करने वाला होगा। खुदा के कलाम को जो हम सुनते नहीं हैं, जहां आते जरूर हैं, और जब आते हैं कान बार शैतान को दे आते हैं, दिल बार शैतान को दे आते हैं, और आपकी सोचें घर के अंदर हैं, आप खुदा को मुकम्मल तौर पर अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिल नहीं देते हैं, तो बेशक आप खुदा के घर आकर खुदा के कलाम को रोंद कर चले जाते हैं। और यशायाह बिन आमोस यहूदा को इस बात पर खबरदार करता है, कहता है ऐसा मत करो, इसका बहुत बुरा रिजल्ट आएगा, बर्बादी की सूरत में आएगा, तबाही की सूरत में आएगा। और खुदा कलाम मेरे साथ देखिए, यशायाह का पहला बाप उसकी 30 आयत सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा सुनिएगा, मेरे नौजवान जरूर सुने, मेरी बेटियां भी सुनिएगा बैठी। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने सांप की चर्नी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते हैं। क्या खूबसूरत लिखा है, ना हो घोड़ियां, ना हो घोड़ियां, वे कुछ भी नहीं है, कहना घोड़ियां खचरा मगर ना हो, घोड़ियां खचरा तो समझ नहीं होती, वो जानवरों के पास समझ नहीं है, सोचने की हिस्स नहीं है, इसलिए वो कहता घोड़ियां खचरा मंगना हो, उन्हें समझ नहीं है। कहता लेकिन खुदा कहता देख, बैल भी अपने मालिक को पहचानता है, गधा भी अपने सांप की चर्नी को पहचानता, तुम कैसे लोग हो, ना जानते हो ना सोचते। खुदा कलाम ये सिखाता है, खुदा वहां पर लोगों को अमूरा और सदूम के साथ खड़ा कर देता है। कहता जैसे अमूरा सदूम के लोग थे, वैसे ही तुम हो, बातिल हदिये लाने वाले, गुनाह के हदिये लाने वाले, कलाम को रोकने वाले, अपनी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करने वाले। किससे मेरा दिल खुश होता है वही काम करना है। यीशु का दिल खुश होता है चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल खुश होना चाहिए, मुझे कुछ मिलना चाहिए, किसी ना पावे गला बढ़िया जाना ते बढ़िया चाहिए। तुम ऐसे लोग अमूरा सदूम के, लेकिन खुदा कहता है फिर भी मैंने तुम पर रहम किया है। इसलिए यशायाह जो है वो एक बात कहता है इस कलाम के अंदर, वो कहता है वो जमाना आएगा जब क्या होगा, सारी दुनिया में अमन सलामती होगी। कोशिश कोई करता है जिसे हम मनाने वाले हैं, आप मनाने वाले हैं, आप मनाने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता आप उसी तरह खुदा को रोते हुए ईद बनाए। आप वही जमात हो जिससे खुदा को नफरत है। खुदा कहता है मैं तुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहता, मुझे इससे नफरत है, मैं नहीं चाहता। फिर वही क्रिसमस बनाए, आप वो क्रिसमस ना मनाए। जब आप क्रिसमस के पास जाए आपको पता हो आपने मनाना क्या है, खुदा चाहता क्या है। क्या खुदा कलाम कहता है एक आएगा, वो बसाली बादशाह होगा, उसी का हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। याद रखिए खुदा के कलाम के अंदर मैं आपकी जिंदगी में इस बात को रखना चाहता हूं। मेरे साथ ये चंद बातें आपकी जिंदगी के अंदर रखना चाहते। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो बेशक हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी बातें होती हैं। क्रिसमस है क्या ये हम कभी नहीं जानना चाहते, बस हमें ये पता है कि क्रिसमस है, क्रिसमस मनाना है, केक काटना है, डांस करना है और क्या करना है। क्रिसमस भी होगा बेशक, यहाँ पर जब क्रिसमस मनाएंगे आगून शुरू हो गई है। क्रिसमस पर तो क्रिसमस ट्री होगा, क्रिसमस केक होगा, जंगल बेल होगी, सेंटा क्लॉज होगा, जंगल तो है वो क्रिसमस बल्ब होंगे, क्रिसमस जो है वो लाइटें होंगी, हम बाहर से घर को बड़ा सजाएंगे, फिर अंदर से लाइटें जलाएंगे, हम बड़ा कुछ करेंगे, केक खाएंगे,
केक खत्म हो, क्रिसमस खत्म, लाइटें उतरेगी, ये सजेगा, खाली होगा, क्रिसमस खत्म। कुछ चौकों पे बैठ के शराब पिएंगे, नशा उतरा, क्रिसमस खत्म। ये आज शख्स का अपना अपना अंदाज है। कभी मेरी बहनें जो पीछे बैठी हैं, कभी सोचा है कि हमें इस क्रिसमस पर यीशु मसीह को क्या देना है, या यीशु मसीह का मकाम आज भी वो चरनी है या कोई और मकाम उसका है? क्या आज भी उसे चरनी के अंदर ही ढूंढना है या कहीं और ढूंढने की जरूरत है? जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, क्या आज भी नए कपड़े आएंगे, पहनेंगे, आके चरनी में यीशु को देखेंगे, बस क्रिसमस खत्म? क्या कभी आपने सोचा आज भी 2022 साल गुजर गए, आज भी यीशु का मकाम वो चरनी है? हर किस चरनी नहीं है। यीशु आया, यीशु चला भी गया, यीशु आसमान पर भी चला, आने वाला है, आमदे सानी है, और आज भी हम यीशु मसीह को चरनी के अंदर ही ढूंढते हैं। आज लोगों ने, सुनिए मेरे भाई, सुनिए मेरे भाई, आज लोगों ने क्रिसमस को खुदा के 10 हुक्म तोड़ने का दिन बना दिया है। मेरी बहनों ने सुना मैंने क्या कहा? आज लोगों ने क्रिसमस को खुदा के 10 हुक्म तोड़ने का दिन बना दिया है। रज की शराब पीनी है। खुदा कलाम क्या कहता है? कलीसिया में कहता है शराब में मतवाले मत बनो, रूह से मामूर हो। हम शराब से मामूर हो जाते हैं। खुदा कलाम ये कहता है, खुदा कलाम के अंदर रज के वो सारे, अब 10 के 10 हुक्म पढ़िएगा और अपने इर्द गिर्द क्रिसमस को मनाते हुए देखिएगा, आप खुदा के हजूर 10 के 10 हुक्मों को तोड़ते हैं और बड़ी खुशी मनाते हैं, रज की खुशी मनाते हैं। इसका मतलब है आज की दुनिया में वो यीशु मसीह कहाँ गया? वो सेंटा क्लॉज के पीछे छुप गया। वो यीशु मसीह कहाँ गया? वो बड़ी बड़ी डेकोरेशन के पीछे छुप गया। वो यीशु मसीह की रोशनी कहाँ गई? वो बड़ी बड़ी लाइटों के अंदर छुप गई। आज हमारी आंखों ने दुनिया की रोशनी को देखना शुरू कर दिया और दुनिया के नूर को पीछे फेंक दिया, कलाम को पीछे फेंक दिया। यीशु मसीह हमारी जिंदगी से कैसा क्रिसमस चाहता है किसी को फिक्र नहीं है। जिस वक्त औरत ने पकड़ा, उसने कहा निजात लेने का, निजात नहीं चाहिए, आखिरी पई निजात, राशन की गल का, राशन मिलेगा, क्रिसमस डिनर मिलेगा, खाना मिलेगा, की पकाओगे? उसने कहा निजात बांटेंगे, निजात नहीं चाहिए यार नन्नू, हमारे सबके लिए यहाँ पर ऐसे ही है। अभी अब मैं बात कर रहा हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे, लगती तो लगे, हाँ हमें निजात नहीं चाहिए, हमें यीशु की मनादी नहीं करनी है, हमें उस मंसूबे को नहीं बयान करना है जिसके वसीले से आसमान के खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा। क्यों जमीन पर आया? इस बात की बुनियादी नहीं मैंने करनी है। और क्यों उसने अपनी जान दे डाली? इस बात की बुनियादी मैंने नहीं करनी है। और मुझे बताओ करना क्या है? हाँ, डांस कैसे करना है, कैसे अल्ताज को रोंदना है, कैसे ठुमके लगाने हैं, हाँ मुझे बताओ कैसे केक काट के बांटना है, और ये सारे काम बताओ, लेकिन कलाम की बात ना करो, निजात की बात ना करो कि इन चांद अयाम के अंदर, इस महीने के अंदर जो 4 या 5 हफ्ते आएंगे, मैंने रूहानी तौर पर दिल की चांदनी कैसे तैयार करनी है, क्या इसके अंदर रोजों की लाइट लगानी है, क्या खुदा का कलाम ये सिखाता है, क्या मैंने इसको सजाया या नहीं सजाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बुजुर्ग बैठा था, उसने कहा यार क्या कर रहा है? यीशु बेच लिया। सुनिए सुनिए मेरी बेटी भी सुनिए, यहाँ से मैंने कहा यीशु बेच लिया। कहता किन्ने दा ही? कहता नहीं तू नहीं खरीद सकता। कहता है किन्ने दा ही? कहता इसकी कीमत बहुत ज्यादा। कहता किन्नी? उन्हें कहा एक उम्दा दिल जो पाक हो। अगर तेरे पास उम्दा और पाक दिल है, आ मैं तुझे यीशु देता हूँ। अगर नहीं है, उठा सारी दौलत, अपने बादल हदिये अपनी दे दी, उठा अपने हदिये दे दी, अपना सारा कुछ उठा, तुझे यीशु नहीं मिल सकता है। यीशु की कीमत है, उस कलाम के अंदर लिखा है पाक दिल यीशु को देखेंगे। सो गए हो? पाक दिल यीशु को देखेंगे।
सोना नहीं जागते रहना है, पाक दिल यीशु को देखेंगे। अब क्रिसमस पे यीशु को लेना है ना, तो पाक दिल लेके आओ, निकालो। चरनी जमीन पर सजाते हो जिसपे ना यीशु है, ना उसकी कुदरत है, ना उसका जलाल है। और कुदरत भी तेरे अंदर, जलाल भी तेरे अंदर, चमक भी तेरे अंदर, और रोशनी भी तेरे अंदर, और रहना भी तेरे अंदर जाता है। तू बार बार उठाकर बुतों में से रख देता है, नहीं रहना चाहता बुतों के अंदर। वो तोड़ता है खुदा के 10 हुक्मों को। वो कहता है तू खुदा का मतलब, मैं तुझ में रहना चाहता हूँ। तू उठा के फिर बुतों में डाल देता है। वो फिर हर क्रिसमस पे कहता है और मैं तो आसमान पर इसलिए उतरा कि वो रिश्ता जो तेरे आसमान से टूट गया, जो बागे अदन में टूट गया, और मैं तो उसको बहाल करने आया हूँ। और तेरे गुनाह की मजदूरी मौत है, और मैं बख्शिश हूँ, मैं फ्री गिफ्ट हूँ, और तेरे खाक से हदिये के बगैर मिल जाता हूँ। और मेरे लिए कोई हदिया नहीं चाहिए, और मेरे लिए कोई देके नहीं चाहिए। मैं बख्शिश हूँ, तुझ पर फजल हुआ है, और तुझे तो मौत की सजा हो गई थी। तू आगर गंधक की झील में जाने वाला था, और मैंने आसमान का तख्त इसलिए छोड़ा कि फिर तुझे खुदा के साथ मिला। तू मुझे फिर कुत्तों से मिला देता है, फिर मुझे उसी जगह रख देता है, फिर मुझे केक में डाल देता है, फिर मुझे सेंटा क्लॉज में डाल देता है। पता नहीं कहां कहां मुझे ढूंढता फिर रहा है। कभी जंगल बेल में ढूंढता है तो मुझे, कभी केक में ढूंढता है। मैं तो एक पाक दिल के अंदर आ जाता हूं। आज तैयारी है क्रिसमस के लिए, बुतों की प्रस्तिश की नहीं, केक की प्रस्तिश की नहीं, सेंटा क्लॉज की प्रस्तिश की नहीं। ये कैंडल जो जलाते हैं इसमें यीशु नहीं है। हर चीज इस बात की गवाही देती है कि हाँ, मैं गवाही देती हूँ कि वही खुदा का कदूस है जो आसमान से उतरा है, और मैं भी उसकी तारीफ करती हूँ। तू भी उसकी तारीफ कर। तू तो मेरी करता फिर रहा है। लोग कैंडल को झुक झुक कर जलते करते फिर रहे हो। क्यों? कैंडल तो तुझे खुद कह रही है मैं तो जमीन का नूर हूँ, आसमान का नूर तो वो है। मेरा याद रखिए खुदा के कलाम के अंदर चंद बातें और आपकी जिंदगी में लिखना चाहता हूँ। आज लोगों ने हैप्पी क्रिसमस की जगह कहना शुरू कर दिया है हैप्पी हॉलीडे, यानी यीशु मसीह को निकाल ही दिया इसके अंदर। अब यूरोप कंट्री के अंदर लोग हैप्पी क्रिसमस नहीं कहते, कहते हैं हैप्पी हॉलीडे, छुट्टियां मुबारक हो। यीशु का दिन नहीं है। सेंटा क्लॉज बड़े बड़े लगा देते हैं, और लोग देखने वाले अनबिलीवर लोग जो हैं, जो यीशु को नहीं जानते, वो समझते हैं यही इनका यीशु है। बड़े बड़े स्नो मैन लगा देते हैं, बर्फ के बड़े बड़े लगा कर कहते हैं यही यीशु है, उसी का सजदे कर रहे हैं। आज यीशु मसीह का मकसद जो है वो खत्म होता जा रहा है। याद रखिए खुदा का कलाम रोमियो 2 बाब उसकी 4 है। सुनिए सुनिए, क्रिसमस है क्या था, हमने क्या बना डाला। हमने क्रिसमस को केक बना डाला, हमने क्रिसमस को जो है वो डांस पार्टियां बना दी, हमने क्रिसमस को शराब नोशी की पार्टियां बना दी, हमने अय्याशियों का समुंदर इस क्रिसमस के अंदर ले आए, और खुदा के उस निजाम को, उस बख्शिश को जो कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है, और लेकिन तुम्हें एक फ्री गिफ्ट दिया गया और तुम पर फजल हुआ, उस फजल की कोई बात नहीं करता। इस फजल को, उस नजात को मैंने कैसे अपनी जिंदगी में लेना है? क्या उसने कहा देखो ये है खुदा का बर्रा जो गुनाहों को उठा ले जाता है, और खुदा कहता कलाम कहता है बाप ने ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने तो अपना काम कर दिया, अपना बेटा नीचे भेज दिया, उसने बख्श दिया। अब तेरा काम है, मेरे बुजुर्गों का काम है, मेरी बहनों का काम है, पीछे बैठी हुई बहनों का काम है कि उस भेजे हुए बेटे को मैं कैसे अपनी जिंदगी के अंदर लूं। ना तो कैसे तेरी जिंदगी में आता है, ना डांस से आता है, ना कुछ कैंडल जलाने से आता है। उसको लेने का तरीका है। इस्लाम ने कहा, कलाम कहता है जाके ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो अल्लाह ना हो बल्कि हमेशा की क्या ये ईमान काफी है? बस हरगिज़ नहीं है। शायद आप समझते हो, आप चर्च आते हैं, गीत गाते हैं हालेलुया, अभी भाई ने कहा मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। यीशु ऐसे हरगिज़ नहीं मिलता। निकालिए यकूब का हाथ मेरे साथ निकालिए, मैं आपकी जिंदगी में रखना चाहता हूं कुछ। यकूब का हाथ निकालिए जल्दी से।
याकूब का खत दूसरा बाब, सुनिए, खाली ईमान से यीशु नहीं मिलता है, कुछ और भी याकूब कह रहा है। कैसा ईमान है? हाँ, यीशु को मैं जानता हूँ, यीशु खुदा का बेटा। वेरी गुड, जी तू जानता है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे भाई भी जानते हैं, हाँ उसने मिल लिया। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? हर शख्स से पता है कैसे पैदा हुआ। कोई बहन भाई ऐसे पता नहीं यीशु कैसे कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। कुंवारी मरियम से जब पैदा हुआ, पहली बार क्रिसमस का न्यूज जमीन पर मां मरियम को दी गई। उसे कहा तुझ पर क्या हुआ है? फसल हुआ है। उसने क्या किया? उसने कहा देख, मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है, मेरी जान खुदा की हमद और सना करती है, और मेरी जान, मेरी रूह मुनज्जी खुदा में खुश है, मुनज्जी खुदा में, इन द गॉड, खुदा में, खुदा के कलाम में, खुदा की बातों में, खुदा की नबूतों में, खुदा की पेशगोइयों में मेरी रूह खुश है, ना कि जमीन के कामों में मेरी रूह खुश है। क्रिसमस को रिसीव किया, मुकद्दस मां ने इसमें यह नहीं किया कि बस जमीन की ख्वाहिशों के पीछे भागना शुरू कर दिया। नहीं, इसने कहा मेरी जान खुदा की, यानी मेरी जान जो है, मेरा दिल अपने जिंदा खुदा की बड़ाई करता है। इसका मतलब है क्रिसमस रिसीव करना है तो तेरी जान को लाइव तौर पर यीशु की बड़ाई करने की जरूरत है। उसने कहा मेरी रूह मुनज्जी खुदा में खुश है। इसका मतलब है रूह को रूहानी चीजों से खुश करने की जरूरत है, ना कि राशनों से, डिनरों से, केकों से, गिफ्टों से खुश करने की जरूरत है। हाँ, ये काम जरूरी है, हम खुशी मनाते हैं, लेकिन इतनी भी ना मनाइए कि रूह से ही खाली हो जाइए। कलाम कहता है, सुनिए, रूह से मामूल हो। ईमान अच्छा है। और याकूब क्या कहता है अपने खत के अंदर, दूसरा बाब, उसका निसाब निकालिए, उसकी 14वीं आयत में देखिए क्या खुदा कलाम कहता है। मेरे साथ नहीं, बल्कि यहां से पढ़िए, सुनिए मेरी बहन भाई, सुने यहाँ पे 14वीं आयत से सुनिए। सुने ये पीछे भाई जो अभी सो गया वो जाके सुने, सुने मेरी पीछे बैठी है बहन भी सुने। अगर आप इतने पे समझ रहे हैं ना कि उसने बेटा बख्श दिया, अब मेरा ईमान है कि मैं कुछ नहीं करना, ना दुआ करनी है, ना मैं कुछ करना है, ना रूह से कुछ करना है, बस यीशु ते ईमान रख गई, मैं सीधा युद्धा में जाकर यीशु के गोल तुर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, आपका ईमान फिर गलत है। मेरी बेटियों का भी ईमान है जो चंद मिनट पहले आकर बैठ जाती हैं और समझती नहीं है, ना वो पढ़ाई करना जानती हैं। चंद मिनट पहले आकर आप बैठ के और आपने समझा मेरा चर्च हो गया, मैं अल्लाह, फिर आप यहाँ पर ही आ कहेंगे वो देखो यीशु आ रहा है, मुझे यीशु चाहिए, इससे कोई यीशु नहीं मिलता। मेरे भाई इस तरह करते हैं, मेरी बहनें यहाँ बैठी यहाँ करती हैं। अगर आप यहाँ आकर ऐसे काम करती हैं तो फिर खुदा कहता है मैं नहीं चाहता तुम्हें जो है घर को रोंदे, और ऐसा भार, ऐसी ईदें मुझे नहीं चाहिए जिसके अंदर मेरे 10 हुक्मों को तू तोड़ता है। और मां मरियम ने क्या कहा? मेरी जान बड़ाई करती है और रूह खुदा में खुश होती है। और रूह कब खुश होती है? जब रूहानी गुज़ा मिले। और रूहानी गुज़ा कब मिलती है? जब आप हमद व सना और खुदा की कलाम को सुनते हैं। सुनिए याकूब क्या कहता है। याकूब का खत उसका दूसरा बाब 14 है। सुनिए, के पास बाइबल मुकद्दस नहीं है, सुनिए, कहता है मेरे भाइयों सुनो, अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूं मगर अमल नहीं करता। सुने जो बुजुर्ग पीछे बैठे भाई, सुनिए, आप भी सुनिए। अगर मैं ईमानदार बनावा, यीशु ते मेरा बड़ा ईमान है, मैं बड़े सजदे करता पर मैं कामों दे कोई नहीं करता, और कलाम के मुताबिक कोई काम नहीं हूं करता। क्या याकूब कह रहा है? सुनिए सुनिए सुनिए, कहता है अगर कोई भाई कहे मैं ईमानदार हूं पर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है, फिर सवाल भी करता है। आप किसी हालत के अंदर हैं, आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, खुदा आपको मौका देता है कलाम सुनकर अपने आप को बदल लीजिए, इससे पहले कि खुदा आपको बदल डाले। आप खाक से खाक में जा मिले, इससे पहले खुदा आपको बदल दे, आप बदल जाइए। क्या लिखा है? सुनिए, आगे मैं पढ़ता हूं ताकि जो है वक्त थोड़ा है, आप मैं पढ़ना चाहता हूं इसी को।
سنیے کہ ایسا ایمان سے نجات دے سکتا ہے جو خدا کے کلام کو نہیں سنتا، جو خدا کی پرستش نہیں کرتا، جو خدا کے کلام سے اپنی روح کے لیے تیاری نہیں کرتا، جو زمینی چرنیوں کو ہی سجدے کر کر کے اپنے دل کو جو عمدہ خدا کے لیے گفٹ ہے، جو کلام کہتا ہے جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھے گا، جو دل کو پاک کرنا نہیں جانتا کیا اسے کلام کہتا ہے نجات ملے گی؟ کہتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور اس کو روزانہ کے لیے روٹی کی کمی ہو اور تم اس سے کہے کہ سلامتی سے جا اور گرم رہے، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کو درکار ہے وہ نہ دے۔ ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے، اسے پانی سے مر رہا ہے، آپ اسے بوتل نہیں دیتے، اسے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پی جا پی جا پی جا، میں پیوا کی، آپ اسے پانی چاہیے نا، کیوں میرے بھائیو؟ پانی اس کے پاس ہے نہیں ہے، آپ پانی اسے دیتے نہیں، پیچھے نکایا ہوا ہے، کہتا پیجا 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 ہو کے منہ لگا پیوا کی میں۔ انہوں نے کہا ایمان بھی ایسا ہی ہے، خالی یسو چاہیے یسو چاہیے یسو چاہیے سے نہیں ہے۔ اگر جسم کو گرم کرنا ہے تو کپڑے کی ضرورت ہے، طاقت دینی ہے تو روٹی کی ضرورت ہے، اس کے اندر بھی ایک روح ہے، اسے بھی کپڑے کی ضرورت ہے، اسے بھی روٹی کی ضرورت ہے، اگر نہیں دیتا تو کیسے ہوگا؟ آگے کیا لکھتا ہے؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات میں وہ مردہ ہے۔ خالی یسو یسو کہنے والا مردہ ہے، اور مردے کو گھر میں ہرگز نہیں رکھا جاتا، اسے قبرستان کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اور خالی مردوں کی طرح کرسمس منائیں گے جس کے اندر خدا کی بڑائی نہیں ہے، جس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، جس کے اندر خدا کے 10 حکموں کو کوئی پاسداری نہیں ہے، آپ ہر ایک طریقے سے ہر ایک طریقے سے زندہ خدا کے کلام کو رونتے ہیں، تو خدا کہتا ہے ایسے عیدیں نہیں چاہیے مجھے، پر میرا قبل عیدیں ایسی اپنی دیگیں اپنا ہر ایک ہدیہ اپنے گھر میں رکھ، مجھے نفرت ہے ایسے باخود سے، ایسے عیدوں سے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس گفٹ کو جو خدا آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے اس کو وصول کیجئے۔ میں آپ کی زندگی میں ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں، لوکا 10 باب، مریم اور مارتھا کی کہانی میری بیٹی نے سنی ہو، کتنے لوگوں نے سنی ہے؟ مریم اور مارتھا کی کہانی سنی ہے؟ ایک مریم تھی ایک مارتھا تھی، مریم روٹیاں پکا رہی تھی، مارتھا کا نام سن رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ مریم کھانا بنا رہی تھی، پیچھے بیٹھے ہوئے، کیا کتنے لوگوں کو پتا ہے کون کیا کر رہا تھا؟ مریم کیا کر رہی تھی؟ کلام سن رہی تھی۔ اب میرا پکا پتا ہے، اب 15 بھی نہیں پتا ہے، باقی ایمان نے تمہیں پتا سی، کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ ادھے لوگ تو ویسے چرچ سن جاتے ہیں۔ مریم کیا کر رہی تھی؟ کلام سن رہی۔ مارتھا کیا کر رہی تھی؟ ڈانس پارٹی کی تیاری، کیک کٹنگ کی تیاری، لٹا لان دی تیاری، اور طرح تو جنہوں وقت پہ آئیے سنے آنا ہے تو میں آ کرنا ہے، اینو گفٹ دینا ہے، بچیاں نو کپڑے لے کے دینے ہیں، آ کرنا ہے۔ مارتھا ادھر دوڑا لائی جا رہی ہے، کرسمس درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، یسوع درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں کرسمس منانے والے، ایک وہ ہے کرسمس ابھی آیا نہیں ہے، آ جُتی لینی، آ کپڑے لینے نے، آنو کیک دینا، آ کرنا تے آ کرنا۔ ایک وہ ہے جو کہتا ہے آج چنی زمین پر نہیں بنانی ہے، اس دفعہ چنی ادھر بنانی ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، دونوں یسوع کے پاس ہیں۔ ایک کو فکر پڑی ہوئی ہے کڑیاں مواری دینا، الالا کرنا، اس چرچ راشن منڈنا، اتھے جانا، اتھے آ کرنا۔ ایک کو فکر ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو سننا ہے،
मैंने यीशु मसीह के पास बैठना है, मैंने यीशु मसीह की इस बात को सुनना है, मैंने यीशु मसीह की बातों को अपनी जिंदगी के अंदर उतारना है, मैंने इसको सुनकर अपनी राहों के लिए नए रास्ते तलाश करने हैं, ऐसे रास्ते तलाश करने हैं जब यीशु मसीह आसमान पर से आए मैं उसे चलनी में ना देखने जाऊं, बल्कि मैं जब आंखें बंद करूं वो मेरे दिल की चलनी में मुझे नजर आए, मैं कहूं हाँ खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर ये मुश्किल है, वो कहे हाँ मैंने हल कर दिया, कहे हाँ मेरी बीमारी परेशान नहीं जा रही, वो कहे हाँ इस किस पर तेरी बीमारी गई, देख हाथ के नीचे कर्ज आ गया, खुदावन यहाँ से कहे हाँ तेरा कर्ज भी इस साल चला गया। दो तरह के लोग हैं, मैं चाहता हूं आप मार्था जैसी तैयारी ना करें, आप मरियम जैसी तैयारी करें। उसने कहा खुदावन देख मैं भाग रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, और देख खुदावन मैं बड़ा काम कर रही हूँ, इधर भी दौड़ रही हूँ, कल्ली दौड़ी जा रही है, नहीं जा रहे यार, ये तो बड़े मजे से बैठे हैं खुदावन, ये तेरा इसका ध्यान तेरी तरफ है। उसने कहा मार्था मार्था इसने क्या किया, अच्छा हिस्सा चुन लिया, और जी तो बोलो क्या किया, अच्छा हिस्सा चुन लिया, और सुची तो बोलो तो आवाज नहीं आन रही यार, लगता तानू ही क्रिसमस लख दे। उसने कहा नहीं नहीं यीशु की ये कीमत नहीं है, मेरी बेटी यीशु की ये कीमत नहीं है, यीशु की कीमत है जो पाक दिल है वो यीशु को देखेंगे, यीशु को देखेंगे। उसने कहा पाक दिल ले आ तो यीशु मेरे करो। आज क्रिसमस पर 5 हफ्ते हैं, 5 आपके पास त्योहार है, 5 दिन त्योहार दिल को तैयार कीजिए, ऐसा दिल जिसमें जंगल बेल यहाँ ना लगी हो, उस दिल के दरवाजे पर जिंगल बेल लगी हो, जब आप टर्न करें ना तो यीशु कहे हाँ बता मेरी बेटी तुझे क्या चाहिए, उस दरवाजे पे लगी हुई बेल को पावे टकरा भी मार देना ना तो यीशु को नहीं आना चाहिए, लेकिन जब उनका दिल पे लगी हुई जिंगल बेल होगी ना, टन टन करेगी ना तो यीशु मसीह ऊपर से कहेगा हाँ मैं सुन रहा हूँ बता तुझे क्या चाहिए। उसमें लाइटें लगाइए, ग्राम के नूर की लाइटें इसके अंदर लगाइए, उसके अंदर रोज वो बेशक खुदा पर जरूरी है, लेकिन ईमान के साथ आगे क्या लिखा है, इसी यकूब के खाते में यकूब के अंदर खाते के अंदर लिखा है अच्छा है तो ईमान रखता है कि खुदा वो खुदा का भी। सुनिए मेरे बेटे सुने, कहता है शैतान भी जानता है कि वो खुदा का शिष्य, गुनाह की मजदूरी मौत, आगे लिखा है एक मजदूरी के आगे लिखा है एक फ्री गिफ्ट है हर एक शख्स के लिए है, उस शख्स के लिए जो ईमान रखकर अपने दिल को उम्दा करता है, ये फ्री गिफ्ट उस मरते दम के बाद भी रूह के साथ आसमान पर जाएगी। रिज़्क़ को मत छोड़िए, राज़िक़ को अपनी जिंदगी में ले लीजिए, शिफा के पास मत भागिए, शाफी को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। इस दफा क्रिसमस मनाने से पहले अपनी रूह को तैयार कीजिए, इस बख्शिश को लेने के लिए तैयार कीजिए, मर्जी खुदा को लेने के लिए तैयार कीजिए, उस रूह को उस उम्मीद को लेने के लिए तैयार कीजिए। जब क्रिसमस पर आप आए आसमान की आप हाथ उठाएं और खुदा का बर्रा जो चरनी में पहले था आपकी दिल की चरनी में आकर आपको ब्लेस करे का पाकलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आइए आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। आइए आज हम कोई दुआ नहीं मांगेंगे, खुदावन से कहेंगे खुदावन देख तेरे आने दिन को मनाने के लिए सब दुनिया तैयार है। खुदावन ये तो गैर लोग भी मनाते हैं, बेईमान भी मनाते हैं, इसको तो चोर भी मनाते हैं, इसको तो हिंदू भी मनाते हैं, खुदावन सब दुनिया मनाती है, लेकिन खुदावन मैं वैसे नहीं मनाना चाहता, मैं अब इससे आगे जाना चाहता हूँ। खुदावन मैं इससे आगे तेरे पास आ चाहता हूँ, तो मेरी